triple wives. The person will get elected, then आप सोच के देखिए इमेज कितना फर्निश होगा इसमें. अंशु पर्सन ऐसा वाला बना है जिसका 3 माइकी है, वाइफ है. So support such person, think twice. आने वाला कल को 10 माइकी लेके 20 माइकी लेके आदमी कंटेस्ट करेगा ताकि वो ये इलेक्शन को जीतना है. अब ट्रिपल वाइफ विल गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट अंशु, तो कल को पेटू वाला मिस्टर अरुणाचल कंटेस्ट करना शुरू हो जाएगा. ये सेम लाइक है. So I would like to appeal all the bona fide voters of this election, the Nishi students, that do not make mistake. Hello everyone, it's Yalnatung from CBN. Today is the last date. The candidates can put out their final appeal to all NISI students. Let's meet our candidates and see what they have to say about it. Oh hi, can you first introduce yourself and what is your last appeal to all the NISI students out there? A very warm good evening to all the viewers and the students community of Nishi tribe. Myself Legend Yade. I'm aspiring candidate for president Ansu for session 24-27, and lastly, after rigorously working and fighting for 4 months, the time has come to cast your valuable vote in favor of your favorite leader, what I can say, whom you going to elect according to your choice. So I, Legend Gyade, I would like to personally appeal each and every voters of the Nishi community, the students, that kindly do not maintain neutral, because your single vote counts a lot, because you are going to elect the next president Ansu, the president who is going to represent all the Nishi community. Ansu stands not only for students. The founder members were students, that's why इसमें SU का tag आता है. Otherwise, it represents all the Nishi community. So, it was formed in the year back 1982. After the formation of this Ansu only, that Ansu has created an achievement that in Apsu, none other tribes can contest in the post of presidential, because this is the achievement created by Ansu. So, Ansu stands for all Nishi Students Union and for its whole community, and its sole duty is to protect the dignity and the pride of Nishi community. And we, being the late starter among all the communities of Arunachal Pradesh, so we need a vibrant leader in this Ansu, and it should be your moral duty to choose the right one, because almost the state like Arunachal Pradesh, where there is no any political oppositions, this Ansu has to control the political nepotism of the government. If government has any tendency to do something wrong over the citizens of our state, Ansu has to raise the voice. So choose the leader that can be the mouthpiece of your community, not only for the Nishis. Ansu can fight for all the state. So it is your duty to choose the right leader in this forthcoming Ansu election, because I'm appealing lastly, because voting process is going to be started from tomorrow. So I would like to appeal all the supporters, well-wishers and the public also to guide the voters, because in this last and crucial juncture, the students are going to select that particular leader. So I would like to appeal again and again, do not maintain neutral, because those who maintain neutrality, some this nepotism, this corruption and injustice prevails in this society. It is because of the people who maintain neutral. We should speak our right. We should speak the truth, so that corruption cannot overpower upon us. So I'm here to fight against the corruption and the social practice in our community. If I get elected as a president Ansu, I will be the mouthpiece of all the community of Nishi and state as a whole, to fight against any kind of corruption, any kind of nepotism within our state. So I, Mr. Legend Gyade, lastly, I'm appealing all the students, voters, that kindly render your mandate in favor of me. If you see any caliber in me, that if you feel that I can do something for our community, so kindly do not hesitate, kindly support and elect me. Thank you very much.
So, as a president candidate, what are your expectations and outcome from all the students as a result of this election? टुडे इट इज़ द era of AI. यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी जो इतना एडवांस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस सोशल मीडिया इट्स केम टू लर्न दैट वन ऑफ माई फेलो ओपोनेंट एक कैंडिडेट है हु हैज़ ट्रिपल वाइफ्स. So it is kind of, you know, if such person shall get elected in this forthcoming election, the face of this ANSU, the most dignified platform, so-called the ANSU, आप देखिए इतना strongest platform है, one of the most powerful platform है in Arunachal Pradesh when we talk about this community-based organization. तो ANSU stands for, you know, this to be the most dynamic and this strongest platform. तो इस ऐसा platform में if such person, the triple wife, the person will get elected, then आप सोच के देखिए इमेज कितना तरनीश होगा इसमें, सोसाइटी में हमारा ANSU का इमेज कितना डाउन हो जाएगा. सो आई वुड लाइक टू अपील ऑल द बोनाफाइड वोटर्स ऑफ दिस इलेक्शन, द निशी स्टूडेंट्स, दैट डू नॉट मेक मिस्टेक. काइंडली टू सपोर्ट सच पर्सन, थिंक ट्वाइस, क्योंकि आप वो आदमी को, बंदा को बनाने जा रहा है हु विल बी द फेस ऑफ ऑल द, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स कम्युनिटी, ही शैल बी द फेस ऑफ ऑल द निशी कम्युनिटी. ये आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, इसमें ट्विटर है, तो अब सारा सोशल मीडिया में ग्लोबली चला जाएगा. दैट ANSU प्रेसिडेंट है, जिसका ANSU प्रेसिडेंट ऐसा वाला बना है जिसका 3 माइकी है, वाइफ है. तो आप सोच के देखिए ऐसा वाला को आप बनाएगा तो ANSU का तो कल एक ऐसे इमेज चला जाएगा, सलाम्बर मोड में चला जाएगा. तो अरुणाचल प्रदेश में एक पॉलिटिकल अपोजिशन ना होने का बराबर है स्टेट जो. तो इसमें कल कौन गवर्नमेंट और सिस्टम को बात कर पाएगा? अगर वो आदमी कोई रिप्रेजेंट कर पाएगा हम लोग को? नहीं कर पाएगा. तो इसलिए आई वुड लाइक टू अपील ऑल द बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ दिस इलेक्शन कि डू नॉट मेक मिस्टेक, बिकॉज इफ़ यू नो इनकरेज सच पर्सन, देन आने वाला कल को 10-10 माइकी लेके, 20-20 माइकी लेके आदमी कंटेस्ट करेगा, ताकि वो ये इलेक्शन को जीतना है और अपना खराबी को बताना है. आदमी जो खुद का भी जो मेरिट को बताना है. पीपल सेज आई एम फ्लैम्बोयस, आई एम, यू नो, दिस एग्रेशन बोलता है. तो समटाइम्स आई फील दैट कि एक मैच्योरिटी लेवल था आजकल हम लोग आ गया. जवान में हम लोग भी कॉलेज समय में, कॉलेज का इलेक्शन होता था, उसमें हम लोग भी दौड़ भाग कुदाकुदी होता था, मगर एज ए वेल मैच्योर नाउ आई एम टुडे. हम लोग 35 एज हो गया अभी. तो इस एज में तो हम लोग एनफ मैच्योर हो गया कि एक सोसाइटी को, एक समाज को हम रिप्रेजेंट कर सकें. तो इसलिए हम लोग का पास कैरेक्टर को, हम लोग का कॉलेज देश का को ले लेके हम लोग को ये बोला जाता है, तो ये है वो है. तो ऐसा नहीं है. आप प्रैक्टिकल देखिए, यू कम टू माई होम, यू कैन सी द इन्वायरमेंट ऑफ माई होम, हाउ आई यूज टू लिव विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये देखना है. तो आदमी लोग जो एक खुद का डीमेरिट को छुपाने के लिए इतना दूसरा को पोर्ट्रे करता है. सो आई वांट टू टेक द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, बट आई विल लाइक टू अपील ऑल द स्टूडेंट्स कम्युनिटी कि डू नॉट मेक मिस्टेक दिस टाइम, बिकॉज यू आर गोइंग टू इलेक्ट द 16th president of ANSU. So that person shall be the representative of all the Nishi community and state as a whole. क्योंकि निशी being the eldest son of this soil, this state, हम लोग हमेशा एक spearheaded warrior का तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा ये सोसाइटी में, समाज में. और जब भी कहीं भूल चूक होता है स्टेट गवर्नमेंट से, तो ANSU ऐसा चट्टान की तरह खड़ा रहता है ये सपोर्ट, ये इसके साथ में आपका पब्लिक के साथ में. तो एक हम आवाज़ बनने जा रहा. आई एम गोइंग टू बी माउथ पीस ऑफ द world, you know, this public of the state and students. तो हम माउथ पीस ही हम खराब होगा. आप सोच के देखिए, इफ़ द ट्रिपल वाइफ विल गेट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ANSU, तो कल को पेटुआ वाला मिस्टर अरुणाचल कंटेस्ट करना शुरू हो जाएगा. ये सेम लाइक है. तो marrying multiple wives, 1000 wives is a personal choice, but to become the president ANSU, you should at least attend some criteria. आप खुद ANSU का बायलॉ में क्लियर कर लिखा गया है कि it is in the aim and objective of ANSU that to eradicate the social level being practiced in our community. And you know, this polygamy is the biggest issue in our community, and I being this conference chairman of my society during 2019, I belong to Gyadu society. तो हमारा ज्ञादी सोसाइटी में फर्स्ट ऐसा रजिस्टर्ड सोसाइटी है जहाँ में पॉलीगेमी बैंड है, क्योंकि हमने हमारे पूर्वजों से जो हम करते आया है, पॉलीगेमी का थ्रो से बहुत ही आपका घर बर्बाद होता है, घर में शांति का कभी माहौल नहीं रहता है. अब अगर 5-6 माइकी लेके कोई जवान लड़का जो शांति रहेगा बोलने से, वो ये आपका गलत है, वो झूठ है.
क्योंकि एक मैच्योर लेवल में 50-60 में अगर ले भी लेता है तो उसमें लव अफेक्शन कम हो जाता है, वो मैनेजमेंट के लिए, घर के लिए होता है। मगर एक जवान लड़का जवान लड़की है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत एक्सपेक्ट करता है, इमोशनली अटैच होना चाहता है, तो उस वक्त में आप 2-3 लेके घूमेगा तो इमोशनली यू विल बी ब्रेक डाउन, यू विल बी ब्रोकन डाउन। तो ऐसा हो कि आप हमेशा एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए, आप सोसाइटी को चलाने के लिए खुद पहले ठीक होना है। आप पहले ठीक होगा तब जाके आप आदमी को ठीक करेगा। यू आर प्रैक्टिसिंग द सोशल इविल एंड यू आर सेइंग दैट कि यू विल फिक्स द दिस इविल प्रैक्टिसेस। तो अब इविल प्रैक्टिस खुद कर रहा है और खुद कैसे आप ठीक करेगा? डॉक्टर का हाथ में तलवार और बंदूक लेके घूमेगा, पेशेंट नहीं भागेगा। तो उसी तरह है यहाँ में आप एक सोशल लीडर बनने जा रहा है, एक अंशु का प्लेटफॉर्म में एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो आप एटलीस्ट ये काम नहीं करना चाहिए। तो इफ़ आई हैपन टू बी दैट प्लेस, हम सोशली और मॉरली हम कंटेस्ट नहीं करेगा। आई विल गिव अप माई पार्टिसिपेशन इन दैट पर्टिकुलर दिस इलेक्शन। अगर एक कुछ सोशल प्रैक्टिस इविल प्रैक्टिस करके घूमता है और वो कल हम उसे क्या उम्मीद करेगा? एंड थ्रू सम रिलायबल सोर्स इट केम टू लर्न दैट कि कोई ट्राइब है जो उस बंदा को फंडिंग कर रहा है ताकि निसी समाज डूबे। तो ये क्लियर कट एक मैसेज जाना है कि ऐसा दूसरा ट्राइब का इंजेक्शन से अगर हमारा ट्राइब में ही हमारा समाज में कैंडिडेट आता है तो निसी को सलाम मोड में ले जाने के लिए आप लोग इसमें, अगर जितना भी हमें व्यूवर्स है, आपको मैं ये सिग्नल देना चाहता हूँ कि आप कि कौन किसके पक्ष में देखिए, कौन गवर्नमेंट के साथ लगा हुआ है, कौन गवर्नमेंट के साथ में इंक्लाइन है, कौन गवर्नमेंट के खिलाफ में बैठा है, ये सबको देखना है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब तक गवर्नमेंट सीधा चलेगा, सही चलेगा, वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। स्टिल वी आर अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट, जो भी हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट चला रहा है। हम इसमें कोई अभी तक का भूल चूक दिखाई नहीं देता है। तो मगर कल को जब अगर गवर्नमेंट से गलत होगा, गलत नहीं होगा बोल के नहीं है, गवर्नमेंट से कभी ना कभी गलत होगा, ही ना कहीं गलत होगा, तो हम गवर्नमेंट फंडेड होगा तो हम कैसे हम गवर्नमेंट को बात कर पाएगा? तो हम प्योरली हम एक अपना मेहनत से, अपना दोस्ती यारी का मेहनत से, अपना रिलेटिव्स का मेहनत से, अपना जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो हमको प्यार करता है, सपोर्ट कर रहा है, उसका मेहनत से, उसका दम पे मैं ये कैंडिडेट कर रहा हूँ। मैं किसी के बैकिंग पे नहीं हूँ। और सोशल मीडिया हमको बहुत ट्रोल गया है कि ये आपका DCM का कैंडिडेट है, ये है बोल के। आई नेवर मेट द कैंडिडेट दिस DCM इन माई इंटर लाइफ। ये आपका 2019 में चाचा का साथ एक बार गया था उसका ऑफिशियल काम में। तो ये तो बहुत प्रोग्रेस का बात है ना। अब किसी एक CM DCM को मिलता है तो फ़ोटो खींचना, तो उसने फ़ोटो खींचा 2019 का एक फ़ोटो को लेकर हमको इतना वायरल किया कि ये DCM का कैंडिडेट है। DCM सर का मेरे पास में नंबर भी नहीं है और सर हमको पहचानता भी नहीं, हम भी सर को नहीं पहचानता है। तो क्लियर कट बात है। तो इसमें हम अपना ये खराबी को छुपाने के लिए दूसरा को इतना लिंगरिंग करता है। एंड टैगिंग मिला हम गैंगस्टर। अरुणाचल में तो गैंग है ही नहीं, तो हमको क्रिमिनल बता। व्हेन and where I get convicted, I'm questioning the public, this and my fellow opponents. हम कहाँ में कन्विक्ट हुआ? I can be called the accused। झगड़ा हुआ कॉलेज समय में, लड़ाई हुआ जवान में, वो accused होता है उसमें। You can call me as an accused, but you cannot give me the tag of criminal because I'm not a criminal। तो यहाँ में इतना कल शाम भी मैंने कैंपेन किया तो बहुत लड़की बच्चा लोग का वहाँ में डर फैलाया गया है कि लेजेंड कहते क्रिमिनल ये है। क्रिमिनल नाम अगर बंदा कोई हमको सामने से क्रिमिनल बोले तो उसको मैं अपना कानून लीगल वे में बात करेगा कि कौन सा एंगल से हम क्रिमिनल है। आप किसी को क्रिमिनल नहीं बोल सकता है। आपका PM से लेके कोई स्टेट का CM का भी केस होता है तो दे कैन बी कॉल्ड एज क्रिमिनल। सो आई वुड लाइक टू अपील, लास्टली अपील की ऐसे आदमी को वोट ना दे जो आपका समाज में रिप्रेजेंट करने जा रहा है कुछ डिफेक्टिव हो। अच्छा बोलता कोई भी होगा, अच्छा लिखता कोई भी होगा। इफ़ यू आर सो मच टैलेंटेड, अब इतना एकेडमिक्स टैलेंट है बोलने से आपको या हमें सिविल सर्विस में जाके सिविल सर्विस ऑफिसर बन के, SP बन के, CO बन के आप सोसाइटी को सर्व कीजिए। आप मगर 3-4 माइकी लेके आप अगर सोसाइटी को, स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले से, इट इज़ काइंड ऑफ स्पाइटिंग ऑन द फेस ऑफ द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ द अंशु। एक अंशु जैसा एक तो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म में आप 3 माइकी लेके कंटेस्ट करना है, 4 माइकी लेके कंटेस्ट करना है, ये गलत है। और स्टूडेंट से सबसे मैं निवेदन है, अपील है कि आप ऐसा बंदा को ना चुने कल आप पछताना पड़े, क्योंकि वो गलत करो सही करो दैट डजंट मैटर, मगर वो बंदा गलत है। इट इज़ प्रूवन कि वो 3 माइकी लेके कंटेस्ट कर रहा है। देयर इज़ इनफ टू प्रूव दैट कि वो बंदा गलत है। आप 10 शादी करो, 20 शादी करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, मगर अंशु जैसा प्लेटफॉर्म में प्रेसिडेंट आने के लिए ये आप गलत है। अब 2 माइकी भी गलत है, इसमें आप नहीं लेना चाहिए। और यहाँ तक ट्राइबल सोसाइटी का बात करने से, शादी तो हम लोग को एक अर्ली एज में हम लोग को बोला जाता है शादी करना है, एक फैमिली प्रेशर होता है क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी बिलोंग करता है। मगर हमारा वही लास्टली अपील है कि मुझे वोट भले ही ना दे, भले ही मुझे वोट ना दे, मगर आप ऐसा आपका पॉलीगेमिस्ट 2-3 माइकी शादी वाला को बिल्कुल वोट ना दें। थैंक यू वेरी मच।
Thank you for your valuable time, and that was quite an insight into what's going on in this election. And once again, best wishes for your candidacy. Thank you. Thank you.